Please write it in the chat box. Am I clear with all? So all three decisions are clear from this example. Three decisions are there: investment decisions, financing decisions, and dividend decisions. All these decisions are cleared with the help of this example. Now we have importance of financial management. What are importance? Importance means if you don't manage finance, you will be in trouble. You will don't get to understand that how much is the profit, how much is the loss, whether the project was worth investing, whether the project will be beneficial for my future. So these are the points. These are certain points which shows if you keep managing your finance, it will be fruitful for your company. These are the points which shows the importance of financial management. Providing guidance in the financial planning. So if you look to the importance of financial management, the first point is guiding. It will guide you as to how to allocate the finance, as to how keep your financing financial activities updates. Assist in acquiring funds from different sources. That means you will get to know what are the different sources through which you can acquire the funds. What are the different sources through which you can raise the funds. Okay, you will get to know that in the form of debentures I can raise my money, in the form of equity capital I can raise my money. So there are different sources through which you can raise the funds and invest in the business. Helps in investing the appropriate amounts of funds. It will help you understand that which project is better for my company. So what amount do I invest in is in that particular project? It will help you understand the appropriate amount, the correct amount which has to be invested in that particular project which you are looking for your future business. ठीक है. उसके बाद आता है इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी. ऑफ कोर्स जहां पे मैनेजमेंट आ गया वहां एफिशिएंट तो होगा ही, because already you are keeping a plan before your actions. You have already planned what all I have to do in the future. Therefore everything will be in a proper manner, and therefore everything will be efficient, everything will be correct, nothing will go wrong. ठीक है. Reduce delay productions. Now already you have a planning before you. You have a planning before yourself. तो आप क्या करेंगे, किसी भी चीज का डिले अवॉइड करेंगे. डिले नहीं होगा. डिले नहीं होगा मतलब किसी भी प्रोडक्शन की एक्टिविटी में मतलब ऐसा होता है ना कि 3 months में आपके पास टारगेट आ गया. You have a target to finish your production activity in 3 months. Now you have already planned those activities. How much do I have to produce in 1 month and 2nd month and 3rd month? So you have a planning. You will never be delayed. Cut down the financial cost. Now why it will cut down? Because I'm controlling the finance. I'm looking after those activities wherein I will come to know whether this project is fruitful for my company after 5 years, after 10 years. Therefore, I will see what amount I will invest in the project in the current period. I do not have to invest so much amount so that I cannot accommodate. ठीक है, इसीलिए हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट भी कम हो जाती है, क्योंकि मुझे पता है कि इस प्रोजेक्ट में मैं इससे ज्यादा नहीं डाल सकती. तो मुझे पता है कि कितना फाइनेंस मेरे पास है और कितना फाइनेंस में कम कर सकती हूँ, कितने खर्चे में कम कर सकती हूँ. तो उसको बोलते हैं कट डाउन फाइनेंशियल कॉस्ट. रेड्यूसेस कॉस्ट ऑफ फंड. रेड्यूसेस कॉस्ट ऑफ फंड मतलब जो जो आपके पास फंड है, इक्विटी फंड, प्रेफरेंस का कैपिटल है, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उनका भी तो बर्डन आपके यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जब आप फाइनेंशियल को मैनेज करते हो, फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मैनेज करते हो, तो प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट करते हैं. So when we invest in proper project and correct project, we fetch more and more profits. When we fetch more and more profits, ultimately cost will be reduced, kharcha will be reduced.
रिडक्शन कॉस्ट ऑफ फंड मतलब, रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ फंड मतलब जितने ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे, देखो आपको डिबेंचर्स को तो 10% ही पे करना है ना. So if you earn 20%, you will have to pay 10% to debenture holders, and rest 10% is your retained earnings. Rest 10% will be in your pockets. But if you are earning 30% more profit, you are earning 30% of profit. You have to pay still 10% only to the debenture holders. Now what is left in your pocket is 20%. So the cost is reduced. No, profits increasing, cost decreasing. आया समझ में. नेक्स्ट इज एंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स. मतलब आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये बताता है कि आपके फंड्स को प्रॉपर कैसे यूज करना है, कौन सी जगह पे कितना पैसा लगाकर प्रॉपरली आपके फंड्स को एलोकेट करके देता है वो. हेल्प बिजनेस फर्म्स टू टेक फाइनेंशियल डिसीजन. आप, आपके बिजनेस को ये बताते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है तो पैसा आएगा कहाँ से, फाइनेंशियल डिसीजंस में भी हेल्प करते हैं. Make a guideline for earning maximum profits incurring minimum cost. वो मैंने अभी बताया. It gives you a guideline. It gives you a road wherein you can invest your money in that project which fetches more profit and decreases the expenses, costs. ठीक है. अब आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो शेयर होल्डर की वेल्थ भी तो बढ़ेगी. प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो इक्विटी को डिविडेंड भी तो ज्यादा आएगा, बिकॉज इक्विटीज डिविडेंड इज डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यू अर्न ईच ईयर, एवरी ईयर. सपोज यू आर अर्निंग 40,000 प्रॉफिट, 10% will be given to equity holders. I am declaring that. So 40,000 का 10% is 4,000. But I am earning 80,000 profit. So 10% will be 8,000. More amount of profits will increase shareholders wealth. shareholders मतलब equity shareholders. equity shareholders का income wealth बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि मेरा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और इक्विटी का जो डिविडेंड होता है वो प्रॉफिट पे डिपेंड होता है. उसका कभी भी परसेंटेज फिक्स नहीं होता है. जैसे डिबेंचर्स का परसेंटेज फिक्स होता है इंटरेस्ट का 10%, 12%. प्रेफरेंस का डिविडेंड फिक्स होता है 10%, 12%, 15%. बट इक्विटी का कभी फिक्स नहीं होता. इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यू अर्न एवरी ईयर. सपोज यू आर अर्निंग 1 लाख, सो 1 लाख का 10% इज 10,000. बट 80,000 अगर अर्न किया तो 8,000 होगा, कम हो जाएगा. तो जितने ज्यादा प्रॉफिट्स उतना ज्यादा मेरे शेयर होल्डर्स का इनकम, उनका वेल्थ बढ़ेगा. कंट्रोल द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस. मतलब मेरे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को वो कंट्रोल में रखता है. कंट्रोल में रखना मतलब ये देखना कि एक्सपेंसेस ना बढ़ जाएं बहुत ज्यादा भी और इनकम्स बहुत कम नहीं होनी चाहिए. उसको बोलते हैं कंट्रोल. आपके घर में देखो मम्मा, आपकी मम्मा कंट्रोल रखती है. कंट्रोल रखना मतलब आपको ज्यादा भी डांटेगी नहीं, आपको ज्यादा भी प्यार नहीं करेगी. ज्यादा प्यार करेगी तो लाडले बन जाओगे, फिर बिगड़ जाओगे. ज्यादा डांटेगी तो गुस्सा हो जाओगे, गलत चीजें करेंगे, है ना. तो बैलेंस रखना, कीपिंग अ बैलेंस बिटवीन टू थिंग्स is known as controlling. So controlling means, in short, keeping a balance, neither too large nor too small. ठीक है. तो यहाँ पे मेरे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को वो कंट्रोल में रखता है कि ज्यादा एक्सपेंसेस बढ़ने भी नहीं चाहिए और इनकम बहुत ज्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए, दोनों चीजें बैलेंस में चले. ठीक है. प्रोवाइड इंफॉर्मेशन थ्रू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. अब आप जब सी एनी कंपनी, if you want to study any company, how will you study? If you want to see the financial status of the company, if you want to check what amount of profits a company is earning in a year, how will you check that? Through their financial statements, balance sheet, trading, profit and loss account. Through these financial statements, you will study that company and you will get to know that what amount of profits company is earning in last 5 years, in last 3 years, in last 1 year, what amount of profit the company has been earning. So you will be able to understand whether company is good or not.
whether company is worth investing in or not. Should I invest in the company? Yes or no? I will get to know from that particular financial statement. So, so in short, financial management also provides you information related to the financial statements of the company, financial status of the company. You will get to know that whether company is worth investing in. ठीक है? And the last one is makes the employee aware of the saving funds. That means how you are also helping your employees ultimately. The people who are working with you in the company are also well known that मेरी जो कंपनी है वो अच्छी है और मैं ऐसे ऐसे मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ. मतलब मैं जहाँ पे काम करता हूँ वो कंपनी बड़ी अच्छी है. तो मैं अगर मेरी कंपनी में, मेरी मतलब जहाँ पे मैं काम करता हूँ, ठीक है, तो इसी कंपनी में अगर मैंने एफडी लगा दिया, एफडी में पैसा लगा दिया, फिक्स डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट में पैसा डाल दिया, तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. क्योंकि मुझे तो पता ही है ना मेरी कंपनी में कैसा काम चलता है और मैं एम्प्लॉय हूँ कंपनी का, तो मुझे तो टेक्निकल डिटेल्स पता ही है कि कंपनी ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही है, प्रॉफिट्स हैं कंपनी के नहीं हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. तो ये तो आपको पहले से ही पता होगा ना, बिकॉज यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन दैट कंपनी, यू आर ऑलरेडी इनटू दैट टेक्निकल पार्ट्स. So you know about the company, and therefore you will be able to invest in that particular company. You will be able to save your amount in that company in which you are already working in. ठीक है, समझ आया? तो these are important points to be noted down. Functions of financial management. अभी ये कर लेते हैं, उसके बाद हम वाइंड अप कर सकते हैं. ओके, नहीं, हम लोग है ना आज पूरा ही कर लेते. देखो 3 ही है मेरे पास. ये कंपैरिजन चार्ट है ना, मैं नहीं करवाऊंगी आपको, या फटाफट आपको ऊपर ऊपर से बता दूंगी. बस मुझे ना 5 मिनट चाहिए आपके, या मैक्सिमम 10 मिनट्स, फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा. मतलब हम लोग को फिर कल नहीं तो ना इसके ऊपर वापस ये चैप्टर ओपन करके पढ़ना पड़ेगा. Is that okay? Should I be taking 10 minutes more? फटाफट हो जाएगा, चलेगा सबको? हाँ जी, सबको चलेगा? बस 2-3 जने रिप्लाई कर रहे चैट बॉक्स में, बस सारे बोलो ओके मैम, ओके मैम, ओके. चलो बहुत अच्छा. चलो अब हम शुरू करते हैं. बस अभी चैट बॉक्स में ध्यान मत दो, यहाँ पे ध्यान दो, स्लाइड पे. चलो देखो अभी फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अभी इसका काम क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या फंक्शन है, व्हाट इज एक्चुअली द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इट एस्टिमेट्स रिक्वायर्ड कैपिटल. सबसे पहले तो आपको बताता है कि मेरा फ्यूचर में मतलब कितना कैपिटल लगने वाला है बिजनेस में. बिजनेस में कितना कैपिटल चाहिए, रिक्वायर्ड मतलब चाहिए, व्हाट अमाउंट ऑफ कैपिटल डू आई नीड फॉर माय बिजनेस, फॉर द प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट इन. समझ आया? उसको बोलते हैं एस्टिमेट रिक्वायर्ड कैपिटल. एस्टिमेट करना मतलब अंदाजा लगाना. नेक्स्ट है आपका डिटरमाइन कैपिटल स्ट्रक्चर. whenever I say capital structure, we come to the bifurcation of two things, owned capital and borrowed capital. कैपिटल में दो ही चीजें होती है, ओन्ड एंड बोरोड. तो स्ट्रक्चर मतलब क्या बोलता है वो, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, या तो आपको कितना इक्विटी में पैसा डालना है और कितना प्रपोर्शन बोरोड फंड्स ले सकते हो, उसका प्रपोर्शन चेक करना. स्ट्रक्चर मतलब उसका प्रपोर्शन डिटरमाइन करना कि अच्छा 50% मेरे पास अपना कैपिटल है, तो 50 में से मैं 50%, बाकी 50% में बोरोड फंड्स ले सकता हूँ मेरी कंपनी में, ठीक है, चलाने के लिए. अच्छा मेरे पास 70% खुद का कैपिटल है, तो 30% बोरोड फंड्स. तो वो स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना, व्हाट स्ट्रक्चर इज बेटर फॉर माय कंपनी. ठीक है. इवैल्यूएट एंड सिलेक्ट द सोर्सेस ऑफ फंड्स. यू नीड टू सी whether the sources of funds, whether a particular source of fund is beneficial to my company in the long run. इवैल्यूएट करना मतलब समझना, इवैल्यूएट करना मतलब डिटरमाइन करना कि ये मेरी कंपनी के लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल है कि नहीं है. उसको इवैल्यूएट करना, उसको कैलकुलेट करना.
उसकी टेक्निकलिटी में जाकर, डेप्थ में जाकर उसको ये समझना कि अगर मैंने ये टाइप ऑफ फंड को रेज किया, इक्विटी को रेज किया, डिबेंचर्स को रेज किया, बॉन्ड्स के फॉर्म में पैसा रेज किया, तो क्या ये मेरी कंपनी के लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल होगा ज्यादा कि नहीं, इवेल्युएट करना। एलोकेट एंड कंट्रोल द फंड्स। अब जब जब मैं बोलूँ कंट्रोल, मतलब ये समझ के चलना है कि ये भी ज्यादा, देखो ज्यादा भी इक्विटी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी बोरोड फंड्स नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा इक्विटी हो गया तो कंपनी डूब जाएगी, तो मेरा बहुत सारा पैसा डूब जाएगा। तो थोड़ा बोरोड फंड्स भी रखने का कंपनी में, कि मतलब इतना ज्यादा भी मेरा खुद का पैसा, अभी आपके पास, आपके डैड ने आपको 10 लाख रुपए दिए बिजनेस में लगाने के लिए, तो क्या 10 के 10 लगा देंगे? नहीं, 10 में से 7 लगाएंगे, 3 रखेंगे अपने पास, कि कभी को मेरे पास कम पड़ जाए तो 3 मेरे पास हो, तो कल को बैंक भी लोन नहीं दे तो मेरे पास 3 लाख अपने होने तो चाहिए। तो आप 10 के 10 नहीं लगाएंगे, अपना पूरा पैसा नहीं लगा देंगे बिजनेस में। क्या करेंगे? 7 लाख लगाएंगे, 3 लाख पीछे रख देंगे अपने पास रिजर्व करके, बचा कर, छुपा कर। समझ आ रही कि नहीं? तो कंट्रोल रखना कि ना ज्यादा मेरा खुद का पैसा भी सारा का सारा बिजनेस में नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा भी नहीं लगाना है और बहुत कम भी नहीं लगाना है। बहुत कम खुद का पैसा लगाएंगे, सिर्फ 10 में से 2 लाख लगाएंगे, तो बाकी 8 लाख क्या आप बाहर से बोरो करेंगे? इतना 8 लाख का कर्जा आप बेयर कर पाएंगे? नहीं। दोनों की चीज में बैलेंस रखना है। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स और सरप्लस। ये देखो ये चार्ट, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स और सरप्लस मतलब डिविडेंड डिसीजंस, मतलब डिविडेंड डिसीजन, मतलब आपने कितना प्रॉफिट कमाया एंड हाउ मच यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन द amongst the shareholders, amongst the debenture holders, amongst your bond holders, how much you have to distribute, you have to calculate, you have to estimate it first, that I am able to pay, my capacity is 10% to pay to debentures, not more than that. I'm not in the capacity to pay 20%. No, sorry. I am only paying 10% and that is my only capacity. More than 10%, I will not be able to pay. If you see, if any other company is paying you 12%, you can invest in. But my capacity is 10%. So you have to determine it, no, first. You have to see what amount of profits you are fetching. If you are earning good amount of profits, then you can pay them 12%. Maybe 15%. But if you're not in that position, if you're not earning good profits, how will you be able to pay them 12%, 15%? You will be able to pay them only 8 or 10%, which is normal earning for them. Am I clear? So this is distributing profits or surplus. Okay. Now last one is monitoring financial activities. Monitoring. Last में क्या होता है? Monitor करना, check करना, whether all my activities are going as per my desired level. ठीक है, उसको बोलते हैं मॉनिटर करना। ये हो गए सारे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। So the another one we have is profit maximization and wealth maximization. See, there are two concepts. There are two concepts which is known as the one is known as profit maximization and the other one is known as wealth maximization. Now, when we talk about profit, it is very narrow concept. Narrow. I'm talking only about my profit. But when I'm talking about wealth, I am looking to a broader concept, a big concept, a big picture comes before me. Wealth means whole company. Profit means only a product. Out of selling a particular product, what amount of profit I fetch is known as profit maximization. I have to increase my profit. I have to increase my sales. If I want to increase my profit, I will have to increase my sales. What sales? Sales of product. मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन प्रोसेस में चलता है ये, लेकिन ये छोटा कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप में बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। बट when I'm talking about wealth maximization, it is calculating the value of not the product but the business, but whole company. ठीक है, वेल्थ मतलब पूरी कंपनी के बारे में वो बात करेगा कि पूरी कंपनी का कितना वैल्यू बढ़ा, कितना कितना वैल्यू बढ़ा मार्केट में,
उसको बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. बट व्हेन आई टॉक अबाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इट टॉक्स ओनली अबाउट द प्रोडक्ट, how much my product increased, how much manufacturing I have to increase, how much I have to sell in the future, in coming future, maybe in 3 months, maybe in 6 months, how will I have to produce so that I can increase my sales. I'm talking only about the product of the company, I'm not talking about the company. But if I am talking about wealth, I am talking about the company. That means मेरी पूरी कंपनी कैसे ग्रो हो, उसको बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. ठीक है, अब आप ये अच्छे से रीड करेंगे ना तो आपको समझ जाएगा. अब है ना, आप नेक्स्ट देखो, लास्ट जो हमारा लास्ट पार्ट है वो है कंपैरिजन चार्ट. अभी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब कंसर्न होता है इसका कि मेरे सबसे ज्यादा प्रॉफिट ही प्रॉफिट बढ़ते जाए, बस यही इसका कंसर्न होता है. लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कंसर्न क्या होता है? पूरी कंपनी में मेरी पूरी कंपनी ग्रो होनी चाहिए, मार्केट में मेरे शेयर वैल्यू बढ़ना चाहिए. अगर शेयर वैल्यू बढ़ेगा तो मेरा गुडविल बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगा तो कंपनी बढ़ेगी, इन शॉर्ट. ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इसके बारे में बात करते हैं. एम्फसाइजेस ऑन. अब प्रॉफिट किस पे एम्फसाइज करता है? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स. अब भी 3 महीने में मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए उसकी बात करते हैं. लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या बात करता है? अगले 5 साल में मैंने कितना कंपनी को ग्रो करना है. ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आई एम लुकिंग व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. दैट मीन्स अगर मैं रिस्क को देखूं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में ज्यादा रिस्क होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. थोड़ा ही बहुत रिस्क होता है, उसमें ज्यादा रिस्क नहीं होता है. लेकिन यस, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के प्रोसेस में रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है. पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कंपनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, गुडविल कब बढ़ेगा पता नहीं, 5 साल के बाद जब सेल्स बढ़ेंगी, जब कंपनी का रेपुटेशन बढ़ जाएगा, कंपनी खड़ी हो जाएगी मार्केट में, तब जाकर मेरी गुडविल बढ़ती है ना. ऐसे नहीं, 2 दिन का काम नहीं होता गुडविल बढ़ाना, कंपनी का नाम करना. रिलायंस कंपनी जब भी गुडविल, आज रिलायंस कंपनी की जो गुडविल है वो 2 दिन में नहीं बनी थी. it took years and years to build the reputation of the company. ठीक है, तो उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है जिसमें टाइम ज्यादा होता है, बिकॉज यू हैव टू वेट फॉर दैट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. समझ आ रहे हैं? एडवांटेजेस क्या है? इट एक्ट्स एज अ यार्ड स्टिक. यार्ड स्टिक मतलब सपोर्ट होता है आपके पास, जैसे ओल्ड एज में हम लोग एक स्टिक लेकर पकड़ के चलते हैं ना, वैसा. फॉर कंप्यूटिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द एंटिटी. ऑपरेशनल मींस डे टू डे. ये जो मैंने वर्ड हाईलाइट किया है ना, उसको बोलते हैं डे टू डे. मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपको शॉर्ट टर्म डे टू डे एक्टिविटीज में एफिशिएंसी बढ़ाएगा. लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आपको लार्ज मार्केट शेयर खरीद कर देता है, मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देता है, एफिशिएंट बनाता है पूरी कंपनी को, सिर्फ प्रोडक्ट को नहीं, पूरी कंपनी को एफिशिएंट बना देता है वो. और लास्ट पार्ट है आपका रिकॉग्निशन ऑफ टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न्स. मतलब इसका टाइम पैटर्न कोई होता है क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का? नहीं, कभी भी. एक महीने में भी प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, दूसरे महीने में प्रॉफिट कम हो गया. बारिश का सीजन आ गया, प्रॉफिट कम हो गया. अच्छा, अब शादियों का सीजन आ गया, प्रॉफिट बढ़ गया. तो इसका कोई टाइम पैटर्न नहीं होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का. वेयरएज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का टाइम पैटर्न होता है. अगले 5 साल में, अगले 10 साल में, फॉर नेक्स्ट 15 years, फॉर नेक्स्ट 20 years, आई एम सपोज टू बिल्ड अप सर्टेन अमाउंट ऑफ गुडविल इनटू माय कंपनी. ठीक है, उतनी गुडविल बनाने के लिए आपको टाइम चाहिए ना, 5 साल 10 साल. आज आपने गुड्स खरीदे और सॉरी आज आपने गुड्स बनाए हैं, कल आप सोचो कि सारे लोग मेरे ही गुड्स खरीदेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है. नया नया कंपनी आपका न्यू न्यू फोन लॉन्च किया है, तो जब तक लोग 4-5 लोग खरीदेंगे नहीं और उसकी तारीफ नहीं करेंगे, तब तक और 4-5 लोग कैसे खरीदेंगे? तो ये प्रोसेस में टाइम लगता है ना, 4-5 से 4-5 हजार होने में टाइम लगता है, गुडविल बढ़ने में टाइम लगता है. ठीक है, तो इसका कोई टाइम पैटर्न नहीं होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का. वेयरएज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए टाइम पैटर्न होता है, बिकॉज इट इज लॉन्ग टर्म. सिंपल. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर?
My whole chapter is done. This is introduction part of finance and financial management. Whole part is done. We have taken 15-20 minutes extra, but we are done with the chapter. I hope you all have, you all are clear with the concepts which I was supposed to. Yes, very good. Good, good. Good then. So we will meet in the next lecture then. Do I have lecture tomorrow? है कल मेरा लेक्चर है क्या? एक बार चेक करो टाइम टेबल में. देखो आपको कुछ भी सेपरेट नोट्स बना, अभी फर्स्ट चैप्टर के लिए नहीं बनाना है. अभी सेकंड चैप्टर जो हम कल से शुरू करेंगे ना, उसके लिए आपको नोटबुक बनानी है. सम्स है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंट्स में कैसे प्रिया मैम सम्स करवाती थी, अब हमको इसमें सम्स हैं. ठीक है, तो कल से मेरे सब्जेक्ट की आपको सेपरेट नोटबुक बनानी है. और गूगल क्लासरूम का मैंने आपको भेजा है कोड, 2 कोड्स भेजे हैं. यू ऑल हैव टू ज्वाइन एंड दैट इज कंपल्सरी, क्योंकि सारे मैंने पीपीटीज और अपने पीडीएफ जो भी मेरे कुछ भी होगा ना, वो मैं आपको डायरेक्टली गूगल क्लासरूम में भेजूंगी. ठीक है, सबको भेजना है, सबको वो कोड से सबको क्लासरूम ज्वाइन करना है. शुभम, आपका जो क्वेश्चन है ना वो ठीक है, बोलो, रेज हैंड करो तो मैं आपको अनम्यूट कर दूं. हाँ बोलो. मैम हाँ जी बोलिए. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ना चैप्टर, इसमें 14 चार्ट में, वो एक शॉर्ट में आप बता देंगे फटाक से. 14 चार्ट का चार्ट मतलब ये कंपैरिजन चार्ट ना, आप ये बोल रहे हो कि ये बोल रहे हो? कंपैरिजन चार्ट बोल रहे हो क्या? शुभम, कंपैरिजन चार्ट बोल रहे हो आप? 14 वाला क्या होता है? 14 क्या है? आई डोंट गेट दैट. 14 मतलब देखो मैं आपको बताती हूँ. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जब भी हम बात करते हैं ना, वो होता है शेयर होल्डर से रिलेटेड. मतलब आपके जो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं ना. अब बच्चा मेरे पास 14 नंबर तो दिखाई नहीं दे रहा है ना स्लाइड में, मुझे नहीं दिख रहा है ये 14. अच्छा यहाँ पे है. हाँ मतलब यही स्लाइड है, यही स्लाइड है ना 14. ठीक है, अब इसमें ना ये बोलता है कि जब हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं ना, तब हम अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स की बात करते हैं. मेरे जो रियल ओनर्स होते हैं ना कंपनी के, इक्विटी, उनका कैपिटल बढ़ेगा तो मेरी कंपनी बढ़ेगी ना. आपने प्रॉफिट ज्यादा कमाए, इक्विटी को पैसा ज्यादा डिविडेंड के फॉर्म में दिया, इक्विटी ज्यादा बढ़ेगा तो कंपनी भी बढ़ेगी. कंपनी बढ़ेगी तो गुडविल बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगा तो मार्केट शेयर बढ़ेगा. तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बात करता है पूरे मार्केट शेयर की. बस यही बोल रहे हैं. अब समझा? समझ आया शुभम? ठीक है चलो. सो आई एम